آپ سب پر سلامتی ہو۔ عبد المنان صمدی کا لکھا ہوا ہے، حکومت کو گرا کر حکمرانی کرنے والے تھے، یہاں کچھ لوگ سب کچھ زعفرانی کرنے والے تھے کہ بارش نے یقیناً روک دی ہجرت پرندوں کی، وگرنہ سب کے سب نقل مکانی کرنے والے تھے۔ اشاروں کی زباں شاید سمجھ ان کو نہیں آتی کہ جن سے گفتگو ہم بے زبانی کرنے والے تھے، وہی رسوائی کا میری سبب آخر بنے مولا، وہی جو لوگ کل شام سہانی کرنے والے تھے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جہاں معیشت کی ڈولی میں بیٹھی ہوئی پوری قوم ہزاروں ارب کے بوجھ میں پھنسی ہوئی ہے، مگر بچانے والے اس لیے بچانے سے قاصر ہیں کہ اوپر تلے قرض کی ایسی تاریں ہیں جس سے بچانے والوں کا ہیلی کاپٹر ٹکرانے کا خدشہ ہے، اور اگر بچانے والوں کا ہیلی کاپٹر نیچے آنے بھی لگے تو معیشت کی ڈولی اس کی ہواؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ بٹگرام میں پھنسے ہوئے کے لیے خدا کوئی حل نکالے اور ہمیں بھی معاشی عذاب کی اس دلدل سے نکالے تاکہ ہم بہتر اور جدید مواصلاتی نظام کی ترویج کے لیے اقدام اٹھا سکیں، اور کم از کم تعلیم کے حصول کے لیے زندگی کو اس قدر مشکل میں نہ ڈالا جا سکے۔ گزشتہ حکومت چلی گئی، حکومت گئی تو حکومت کا ایک بہت بڑا سکینڈل منظر عام پہ آیا۔ مملکت خداداد پاکستان میں جہاں ایک جانب عوام بجلی کے بلز کے عذاب سے باہر نہیں نکل پا رہی، مملکت خداداد پاکستان میں جہاں ہمیں روزانہ کفایت شعاری کا درس دیا جاتا ہے، مملکت خداداد پاکستان میں جہاں روزانہ ہمیں احتساب کی تلقین کی جاتی ہے، مملکت خداداد پاکستان میں جہاں ہمیں روزانہ ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، وہاں وابڈا کا ایک بڑا سکینڈل منظر عام پہ آیا ہے جس پر ابھی تفصیلاً آپ نے کہیں کچھ نہیں سنا ہوگا، اور یہ گزشتہ حکومت کی کارکردگی اور ان کے اقدامات سے پیوستہ ہے، جہاں ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں دہشت گرد، فلاں چور، فلاں تخریب کار اپنا روپ بدل کر پولیس کی وردی پہن کر خود کو فاجی ثابت کر کے یا خود کو کوئی بھی بڑا آفیسر ظاہر کر کے تخریب کاری کرنے کے بعد فرار ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنے آس پاس نظر رکھنے اور محتاط رہنے کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے تعزیرات پاکستان کے تحت کوئی بھی عام شخص افواج پاکستان، سیکیورٹی اداروں اور کسی بھی سرکاری ڈریس کوڈ کو کاپی نہیں کر سکتا جو صرف اور صرف اس ادارے کے لوگوں کو تفویض کیا گیا۔ تو اس سب کے بالکل برعکس ایک سکینڈل ایسا منظر عام پہ آیا جس میں ایسے اقدامات اٹھائے جاتے دکھائی دیے ہیں، اور وہاں پر جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ گزشتہ دور حکومت میں، یہ ابھی پی ڈی ایم کی جاتی حکومت نے کی ہیں، کیونکہ اگر کوئی فوجی ریٹائر ہو چکا ہو تو بھی وہ اپنی وردی کو پہننے کا مجاز نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر وابڈا کے محکمے میں عجب رنگ دیکھنے کو ملے۔ وزارت داخلہ، وزارت آبی وسائل، وزارت دفاع کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی وردیاں سیکیورٹی فورس کو مہیا کی جاتی ہیں جو وابڈا کے ہوتے ہیں تو اس میں اپروول لینا پڑتا ہے، لیکن ان تمام وزارتوں کی طرف سے کوئی اپروول نہیں لیا جاتا۔ ان تمام وزارتوں کی جانب سے جاری کردہ لیٹر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وابڈا کے سیکیورٹی اہلکاروں کو فوجی وردیوں سے مماثلت رکھنے والی وردیاں پہنائی گئی ہیں جو اصول و قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ایسی تمام آرڈرز جو ان وردیوں کو خریدنے کے لیے دیے گئے ہیں وہ فوری طور پر منسوخ کیے جائیں، جس پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس کی اب جامع انکوائری ہو رہی ہے۔ وہاں پر ریڈ کی جاتی ہے وابڈا ہاؤس پہ، وہاں سے ریکارڈ قبضے میں لیا جاتا ہے، اور ریکارڈ قبضے میں لینے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ غیر قانونی بھرتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرحد پر لڑنے والے جوان کو تفویض کردہ وردی کو کیسے کسی سیکیورٹی فورس کو دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ فوجی ہی کیوں نہ ہو؟ لیکن حاضر سروس فوجی کی وردی اور ریٹائرڈ فوجی کی کسی اور ادارے کی سیکیورٹی وردی میں فرق ہونا چاہیے۔ معاملہ یہیں پہ نہیں رکتا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو ایک اور درخواست بھی موصول ہوتی ہے اور اس میں ہوش ربا انکشافات کیے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے ریکارڈ قبضے میں لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف وردیاں ہی نہیں ہیں، خلاف قانون یہاں پر کتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، خلاف قانون یہاں پر کتنی بھرتیاں کی گئی ہیں جس پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا جاتا ہے تاکہ ریکارڈ کو ٹیمپر نہ کیا جا سکے۔ انکشافات یہ منظر عام پہ آئے ہیں کہ خلاف قانون صرف ان وردیوں کے ہی آرڈرز نہیں دیے گئے،
बल्कि मुतल्लिका शख्सियत की जानिब से गबन की इत्तलात भी हैं, जिसके मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका होने की तहकीकात अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जिम्मे है। FIA को लिखे गए खत में यह पहले दर्ज किया जाता है कि चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब ने 2015 के एक अथॉरिटी फैसले का सहारा लेते हुए DG लॉ की मंजूर शुदा पोस्ट को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे DG सिक्योरिटी के तौर पे रीडेजिग्नेट कर दिया और तो और एक ही दिन में तायुनाती भी कर दी गई। ना कोई इश्तिहार जारी हुआ, ना ही किसी SOPs का ख्याल रखा गया, ना ही तमाम मेरिट्स को देखा गया, बल्कि तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए मेंबर पार की समरी से लेके चेयरमैन की मंजूरी और फिर चेयरमैन की मंजूरी से लेके अपॉइंटमेंट लेटर तक सब कुछ एक ही दिन के अंदर हुआ। और फिर कहा गया कि यह कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब जिसकी मुद्दत सिर्फ 1 साल होगी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद तुफैल साहब कोई भी मुस्तकिल मुलाजिम वाली सहूलियात नहीं हासिल कर सकेंगे। अब यह मोहम्मद तुफैल साहब को सिर्फ एक ही दिन के अंदर वहां पे तायुनात किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सहूलियात नहीं दी जाएंगी। कहां कागजी कार्रवाई और कहां हकीकत। उस खत में यह दावा किया गया है कि मोहम्मद तुफैल साहब को खिलाफे कानून 2 गाड़ियां दी गई, जिनमें एक 2021 मॉडल की फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो भाषा डैम को तफवीज की गई और एक और गाड़ी जो कार है उनके घर के लिए 2013 मॉडल की दी गई है। बात फिर यहीं पे नहीं रुकती, उन्हें DHA फेज 2 में उनका घर जो है उसको हाउस एक्विजिशन कर दिया गया और माहाना 59,000 रुपया भी तफवीज कर दिया गया, जबकि उनके जारी करदा लेटर में इस बात का कहीं पे तज़किरा नहीं है। और इसके साथ उसी दिन से उनकी रिहाइश गाह के लिए 1100 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी पास करवा ली गई। यहां पे अवाम एड़ियां रगड़ रही है, अवाम के बिल्स आ रहे हैं तो वो जहनी तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। लेकिन उसी दिन से वापडा रेस्ट हाउस अपर मॉल कॉलोनी के कमरा नंबर 8, 9 और 10 को भी उन्होंने अपने लिए मखसूस कर लिया और इसकी मुकम्मल तफसील जो है ये PD बिल्डिंग सर्कल के दफ्तर के अंदर मौजूद है। ये कमरे किसी और को भी नहीं दिए जा सकते, वो चाहे यहां पे हो चाहे ना हो। इन कमरों का 1 रुपया भी वो अदा नहीं करते, जबकि वो 90% वक्त जो है वो इस्लामाबाद में गुजारते हैं और ये कमरे खाली पड़े रहते हैं। और इस्लामाबाद आने जाने के TADA की मद में 10 लाख रुपए अब तक के इतलात के मुताबिक वो ले चुके हैं। ये अलग बात है कि उनका अपना घर भी इस्लामाबाद में है। सिर्फ यही नहीं है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग के 31 दिन बाद ही MD एडमन का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। MD एडमन बज़ाहिर अगर आप कहें कि किसी नॉर्मल फर्म के अंदर हो तो MD एडमन लगा दिया गया तो बहुत बड़ी पोस्ट नहीं समझी जाएगी, समझेंगे कि बहुत एक छोटा सा इदारा है। ये वापडा की पोस्ट है और ये एक ऐसी आम पोस्ट है जहां पे विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद PAS का 20वें या 21वें ग्रेड का ऑफिसर लगता है और यहां पे PSP या PAS इसका 21वें या 20वें ग्रेड का ऑफिसर। एक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद हामिद रजा, जो कि दियामिर भाषा डैम के लॉजिस्टिक ऑफिसर थे। उनको GM HRD GM LA&R की पोस्ट पे लगा दिया गया। यूं ये एक ऐसी पोस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम की पोस्ट है, उसको मुस्तकिल मुलाजिमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात दे दिए गए। ये यहां पे चोर बाजारी है, ये चोर बाजारी की दास्तान उस खत में बयान की गई है। इसके अलावा मजीद कारनामे भी उधर दर्ज किए गए। अवाम सिसकती बिलकती 2 वक्त की रोटी को तरसती है और वहां पर उन्हें घर के नाम के ऊपर 59,000 रुपए माहाना मिल रहे हैं, जो कि उनकी पोस्ट के मुताबिक नहीं है। और अपनी सवारी के अवाम ख्वाब देखती है, लेकिन उधर जिसको सवारी नहीं मिल सकती 2 गाड़ियां मिलती है। अवाम एक आम सी नौकरी हासिल करने की तगोदो करती है, उधर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को सब कुछ दिया जा रहा है। अवाम बिजली के बिल्स के अजाब में मरती चली जा रही है और यहां अकरबा परवरी के नतीजे में याशियों के खात्मे नहीं हो रहे। और माजी करीब के करप्शन की कहानियों की दास्तानें भी हैं, लेकिन ये माजी करीब की वो करप्शन की दास्तान है जो मंजर आम पे नहीं आ सकी। FIA रिकॉर्ड कब्जे में ले चुका है। अब देखिए क्या बनता है। पैनामा JIT रिपोर्ट की भी बात करते हैं, उसका वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने ब्रॉडशीट के वकील लतीफ खोसा को पाकिस्तानी अवाम के हक की बात करने और सियासी दलाइल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल का कहना था कि वॉल्यूम 10 खुलवाना है तो 184(3) के तहत दरखास्त ला सकते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट के कंधे पे रख के पाकिस्तानी अवाम के हक की बात ना करें। अगर आपने पाकिस्तान के हक की बात करनी है तो फिर जजेस को करने दें और फिर 184(3) के तहत आप दरखास्त दायर करें, जिस पर आज खुद नोटिस लिया जा सके। मंगल को ब्रॉडशीट कंपनी की पैनामा JIT के वॉल्यूम 10 तक रसाई से मुतल्लिक जो दरखास्त थी, उसकी चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की।
इस समाअत के दौरान जब लतीफ खोसा साहब ने वॉल्यूम 10 के बारे में जानना अवामी हक करार दिया तो अदालत ने उन्हें कहा कि आप ब्रॉड शीट के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तानी अवाम के हक की बात ना करें। आप इस वक्त ब्रॉड शीट के नुमाइंदे बनकर आए हैं, तो ब्रॉड शीट के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिर्फ उन्हीं का इजहार आप यहां पर कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आलमी सालसी के लिए वॉल्यूम 10 खोलने का कहा गया था, ताहम सालसी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब ये दरखास्त जो है ये गैर मुअस्सर हो चुकी है। ब्रॉडशीट कंपनी के वकील लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि पैनमा JIT वॉल्यूम 10 में ऐसा क्या है कि उसे खुफिया रखा जाए। आर्टिकल 19A के तहत अवाम को यह हक हासिल है कि वो देखें कि कैसे मुल्क को लूटा गया, किसने मुल्क को लूटा, किन जराए से लूटा, रकूम कहां पर मुंतकिल की, उस पर इजारादारी किसकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पैनमा केस के फैसले में वॉल्यूम 10 के बारे में क्या कोई ऑब्जर्वेशन दी थी, तो जिसके जवाब में कहा गया कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि पैनमा केस में मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया। आपको वॉल्यूम 10 सालसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए चाहिए था, वहां मामला निमट चुका है। अब तो आपकी दरखास्त जो है वो गैर मुअस्सर हो चुकी है। यह बहस मुबाहिसा जब अदालत के अंदर जारी था तो उस दौरान फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मंजर आम पे आए। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट को नैब ने $28 मिलियन अदा कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या इस मामले के ऊपर आप 184(3) के तहत ही दरखास्त ला सकते हैं, मगर आप मिस्टर स्टुअर्ट के कंधे पर रख के मफाद आमा की बात ना करें। आप बैरूनी लोगों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की रखवाली कर रहे हैं या उसकी जबान से अपने अल्फाज अदा करके उनका हक अदा करने की बातें ना करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील लतीफ खोसा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पैनमा फैसले पर दोबारा नजरसानी कराना चाहते हैं। वकील लतीफ खोसा बोले कि नहीं, मैं पैनमा फैसले में जाना ही नहीं चाहता। बात सिर्फ ये है कि वॉल्यूम 10 के हवाले से उसे मंजर आम पे अगर वो आ जाए तो फिर कितने लोग बेनकाब हो जाएंगे। माजी करीब के अंदर अवाम के रखवाले होने का दावा करने वाले अवाम को किस तरीके से चूना लगाते रहे, इस पूरे सिस्टम के ऊपर किस तरीके से मुसल्लत होते रहे, चाहे वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी अवाम जो है तमाम तर कवानीन उन पर लागू होने के लिए, क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वही सिर्फ हवा में मुअल्लक होने के लिए, क्या पाकिस्तानी मईशत जो है वही कर्जों के बोझ तले दबने के लिए, क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वही सिर्फ बिजली के बिल्स की अदायगी में रोना रोने के लिए, क्या पाकिस्तानी अवाम जो है क्या सिर्फ वही अशियाए खोरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अपने हाल के ऊपर कोहराम मचाने के लिए। आप क्यों नहीं कोहराम मचाते जो कुर्सियों के ऊपर मुसल्लत रहते हैं। पाकिस्तानी सिस्टम को जूंकों की तरह आपने चूसा है और आप अब कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये मुश्किल की घड़ी से निकल जाएंगे। आप कभी मुश्किल में फंसे तब आप कैसे निकलते हैं उसका दर्स अवाम को दीजिएगा। बसूरत दीगर अपने अमाल के ऊपर खुद नजर दौड़ाइए और फिर फैसला कीजिए कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अजाब मुसल्लत होने को है या आपके अमाल आपके ऊपर अजाब मुसल्लत करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।